ड्रग एडिक्ट बढ़ती जा रही है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसे पंजाब गवर्नमेंट ने रोकने के लिए बहुत सारे ओपियोइड असिस्ट ट्रीटमेंट लाने का डिसीजन लिया है, ताकि जो यूथ इससे गुजर रहा है उसे बाहर कैसे निकाला जा सके। 27 अगस्त को पंजाब गवर्नमेंट ने ओपियोइड असिस्ट ट्रीटमेंट लाने का डिसीजन लिया है। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने 100 दिन बिग बैंग प्रोग्राम लाने का डिसीजन लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, OOET सेंटर, ओपियोइड असिस्टेंट ट्रीटमेंट, ताकि जो यूथ इससे गुजर आए उसे बाहर निकाला जा सके। The move to set OOET centers in Punjab began October 2017. Administrative de-addiction medicine, a combination of buprenorphine and naloxone. There are currently 2 to 4 governments run, including 11 in jails, where medicine is given free of cost. Thank you. Maximum employment as a single working complex. Management employing more than 14 lakh individuals, with more than 13,000 passenger trains and 6,000 freight trains. Indian Railways connects the whole country with 65,000 km long railway track. In financial year 2022 and 23, with the budget of $18 billion allocated by Indian government, Railways is planning to come up with new and innovative projects like building freight corridors for contributing in Indian economy. Railways Ministry has announced to invest $680 billion to upgradation of railway by 2030. Indian Railways is the 4th largest network in the world and 8th largest employer. Thank you. What will India's environment look like in future, since India is already one of the most polluted countries in the world? Will India ever be able to control this pollution? If yes, then when? Most of Indian rivers, especially the smaller ones, are today toxic drains. Groundwater, a major source of drinking water, and most of it is drinked without any treatment. Delhi is one of the most polluted cities in the world. The background report suggests that 40% of pollution in Delhi NCR is contributed by vehicles. Even in cities where air quality is monitored, but the number of monitoring stations is very small. Firstly, the government should build monitoring stations in cities. Power plants and industries and vehicles are the biggest source of population. Even in Gujarat has more than 90,000 industrial units according to the state government. About 8,000 of these units are polluting. I am convinced that that is not going to be an India that anyone of us dreamed of. भाजपा की ओर से महिला सशक्तिकरण और कांग्रेस के कुछ सवालों का जवाब देना चाहूंगी। 2014 से पहले महिलाओं को कहा जाता था कि पढ़ी लिखी हो तो क्या हुआ, हो तो लड़की ही तुम, जॉब कर ली तो क्या हुआ, हो तो लड़की ही तुम, रात का अंधेरा है तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक, मत निकलो रात के अंधेरे में बाहर, मत भूलो कि खानदान की नाक तुमसे ही ऊंची नीची होती है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता था महिलाओं को? Women, who is a woman? What she do all the day? She spends her 365 days of every year in the upbringing of her family, of her children. Still, she is not being respected in our country and in our forward society. Why? And if we talk about men who do all the same work as the women do, he is being so respected. Okay, let's not talk about men. Let's talk about goddesses. As we all know, the goddess of strength and power is Ma Durga. The goddess of wealth is Ma Lakshmi, and the goddess of knowledge is Ma Saraswati. If such goddesses are being so respected, then our women who take care of her family 24/7, why she is not being respected in our society? And what about those women who's being raped, molested in every single day, who is being raped and molested every single day? What is the fault of such women who has to face these problems like dowry, bride burning, rape, molestation? And we look at the national records. According to national records in 2008,
95,856 women are being raped. In 2009, 2,003,804 women are being murdered just because they are not able to pay dowry. Why? And in 2014, there are 3,000 reported incidents against women, a 44% increase. Sonia Gandhi ji, a 44% increase. Please remember this. And I want to remember you that a woman is not a housewife, she is a housemaker. Of the women living in India, a 3.5% live in West Bengal, where 11.7% of total reported crime against women occurs. Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is home to 7.3% of India's female total population and accounts for 12.5% of the total reported crime against women. And we talk about the rape and molestation. According to national crime records, one woman is raped in every 20 minutes. Incident of reported rape crime increased 3% from 2011 to 2012. और मैं मेनका गांधी, सोनिया गांधी की जेठानी सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करती हूँ इस इल्जाम के साथ कि पिछले 70 वर्षों में सोनिया गांधी की पार्टी ने भारत को लूटने का काम किया है। Thank you, Menka ji. Thank you so much. Thank you, Speaker Ma'am, for giving me this opportunity to speak here. I, Shashi Tharu, representing my views on Uniform Civil Code. UCC applies for the formulation of one law for citizens of India. Intellectually, I sympathize with the idea of UCC on the grounds that we are one society, one common citizenship. We all have the same rights and all have the same common citizenship. On the other hand, I want to tell you that we are not living in the fair ethical world. We are living in the world we actually are, where the people of various communities have enjoyed their personal rights. Are we now going to tell them that we are going to take their rights in a special country like it is a secular one like India? I think that's the real problem. I think if you were to actually accept the fact that UCC is desirable, then you must persuade that others that it is desirable for them too. And that persuasion has not probably been attempted. It's instead been seen as advocacy of something at the expense of the other interests of particularly minority communities. And that's why the resistance to it. I also want to address my views on the topic official language Hindi. The exact problem of Hindi being the national language is that there is a single language in a multilingual country. We have our foreign minister says that Bharat ki Rajbhasha. Bharat has no Rajbhasha. Article 343 of the Constitution makes it very clear that Hindi is an official language. The official languages of Act 1963 says that Hindi and English are both the official languages of India. If in need, we have prime ministers or any other minister who prefer to speak Hindi, their speech can be translated into them. Why should we put our future ministers who may be from Tamil Nadu and West Bengal in a situation where to be there speaking in a language for which we are paid? I understand the pride of Hindi speakers in this country, but the people in this country who do not speak Hindi also get the same opportunity in speaking other Indian languages. To my mind, if you want to preserve India's unity, if you respect the idea of India, it can only be a multi-religious, multi-ethnic, multi-colored, multilingual India. That's the only India that can survive. So it's the right time for the big change. Thank you. माननीय स्पीकर महोदय, मुझे अपना विचार रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सुशील मोदी बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। मैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऊपर अपना विषय बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हम कोरोना वायरस को झेल रहे हैं। स्टार्ट हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कीमत कुल 20 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल 5 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करता है। फर्स्ट, इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि छोटे मोटे चेंज नहीं बल्कि एक क्वांटम जंप लाएगी। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। थर्ड, डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के हमारे वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। फोर्थ, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती हुई शताब्दियों की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी के सारे सपनों को साकार कर देगी। डिमांड, हमारे जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। चरखी दादरी जिला तो मेरे सांसद के समय पे बना, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बनवाया। रोड मैप केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिलकर मैंने चंडीगढ़ नारनौल से चंडीगढ़ तक का हाईवे की मांग की थी, जो बनकर तैयार हो चुका है। पहले रोड द्वारा जाने से 8 से 9 घंटे लग जाते थे, अब मात्र 3 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। और इस कार्य के लिए मैं श्री नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों का भी मुद्दा उठाया है। कई ट्रेनों का समय बदला और कई ट्रेनें नई भी शुरू की है। एक स्पेशल ट्रेन भिवानी से मुंबई तक की मैंने शुरू की है, जिससे मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को बहुत ही सुविधा महसूस हुई है। मैंने मेरे क्षेत्र भिवानी और महेंद्रगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस भी खुलवाए हैं, जो पहले चंडीगढ़ और अम्बाला में बनते थे। और इस कार्य से मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को बहुत ही सुविधा महसूस हुई है। धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ओम बिरला आप सभी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोटा राजस्थान में स्थित एक शहर का नाम जो अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 40 से भी बढ़िया कोचिंग सेंटर मौजूद है। कोटा इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल परीक्षाओं की अच्छी व सस्ती तैयारी कराई जाती है, जैसे IIT, NEET आदि। कोटा को कोटा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोटा कोचिंग हब भी बन गया है, जिसमें विनोद कुमार बंसल का बहुत बड़ा था, जिन्होंने बंसल क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर खोला और अब वह बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 1500 करोड़ का है। करीब 1.5 लाख के आसपास बच्चे यहाँ प्रति वर्ष पढ़ाई करने आते हैं। इन सब चीज़ों के चलते कोटा को भारत की कोचिंग की राजधानी भी घोषित कर दिया गया। अब हम एक और विषय पर प्रकाश डालना चाहेंगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में है। कुछ ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। ककरापट एटॉमिक पावर स्टेशन जो गुजरात में है, गुजरात एटॉमिक पावर स्टेशन जो तमिलनाडु में है, नरोवा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में है। मैं सर्वनंदा सोनवाल आदरणीय सभापति महोदया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा एवं भवन में मौजूद सभी लोगों का मेरे ऊपर ध्यान चाहूँगा। मैं आज यहाँ सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में अवगत कराने के लिए खड़ा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन की नींव रख चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है नया संसद भवन और यह सेंट्रल विस्ता। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने लगी है। सेंट्रल विस्ता राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर मार्ग के इस क्षेत्र को सेंट्रल विस्ता कहा जाता है। सेंट्रल विस्ता में राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक एवं उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, IGNCA, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, निर्माण भवन एवं जवाहर हाउस भी इसमें शामिल है। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना को कहा गया है। नए संसद भवन का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा और राज्यसभा का आकार भी बढ़ेगा।
संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। नए संसद भवन के आकार को त्रिकोण रखा गया है। इसके कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस परियोजना का सुझाव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किया गया है। इस परियोजना का 80% कार्य पूरा हो चुका है और बाकी कार्य भी प्रगति पर है। इस परियोजना को चलाने के कई सिद्धांत हैं, जैसे मूल समरूपता और ढांचे में ही पुनर्विकास का होना, लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल के कार्यों में मजबूती लाना, सांसदीय एवं लोकतांत्रिक क्षमता में बढ़ोतरी लाना, संसद को एक सही और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। इसकी शुरुआत सितंबर 2019 से की गई थी और इसके खत्म होने का अनुमान वर्ष 2026 लगाया जा रहा है। इस परियोजना का कार्य रायसीना की पहाड़ी पर किया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसकी अनुमानित लागत 13,450 करोड़ यानी करीब 1.96 अरब डॉलर लगाई गई है। मेरा मानना है कि यदि पुरानी संसद भवन ने आजाद भारत को मार्गदर्शन दिया था, तो निश्चय ही नया संसद भवन और यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत को मार्गदर्शन करेगी। इन सब के अलावा न केवल इन्हें कामकाज के लिए बल्कि पर्यटन स्थल के तौर पर भी पुनर्विकसित किया जा रहा है। धन्यवाद श्रीमती स्पीकर। In sex ratio through social change. The program was launched on 22 of January 2015 by Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. It is implemented in all districts of Haryana except Mewar. The sex ratio in Haryana crossed 1900 mark for the first time. According to Economic Survey 2022, sex ratio increases to 1,020 females per 1,000 males. In the country has risen from 991 in 2015-16 to 1,020 in 1921 as per the Economic Survey table shown in the Parliament of Monday. This scheme is to improvement in country against gender discrimination and women improvement in the country. Thank you. My name is Garima from class 7. My topic is right to information. The government has introduced a bill named Right to Information Act 2005, which changed pay and allowances of election commissioners who currently enjoy benefits equivalent to them. Also, some activists criticize that it will affect our independence, neutrality of the transparency panel, but this is not. Now I am talking about historical background. Historical background. The right to information gained power when Universal Declaration of Human Rights started, and it was started in 1948, and that's mean that everyone has a right to seek information, receive, seek information and ideas or no media, and regardless of frontiers. पार्टी ने वो अदालती लड़ाई लड़ी जिससे साफ हुआ कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत के डंके की चोट पर यह स्थापित हो गया कि देश में संविधान सबसे ऊपर है। इससे ऊपर संसद भी नहीं, जहां जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि आते हैं। 24 अप्रैल 1973 ये वो तारीख है जब भारत के न्यायिक शास्त्र के इतिहास में एक परिघटना हुई। ये घटना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला, ये वो केस था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है, संविधान सुप्रीम है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को संशोधित करने की शक्ति असीमित नहीं है। केशवानंद भारती इस मुकदमे में मुख्य याचिकाकर्ता थे। केशवानंद भारती की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के मूल ढांचे की सिद्धांता प्रतिपादन, ये सिद्धांत कहता है कि संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला सकता। 1969 में केरल सरकार भू सुधार कानून लेकर आई और मठ के 400 एकड़ जमीन का टेक ओवर कर लिया। केरल सरकार के इस फैसले
फैसले के बाद मठ की आय में जबरदस्ती गिरावट आई। युवा महंत केशवानंद भारती इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था कि संसद संविधान में संशोधन बन गया। इसी संविधान की मूल रचना सिद्धांत कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की यह जुडिशियल थ्योरी आगे चलकर कई अहम फैसलों का बुनियाद बनी। धन्यवाद। Thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity to give my opinion on the topic of 5G technology. 5G is a new revolutionary technology in the field of telecommunications. It is set to play an unprecedented role in the field of communication, which will replace 4G in future. 5G is the fastest, low latency and most secure means of data transfer so far. The speed of 5G is 1 gigabytes per second, which is 10 times faster than a normal wireless mobile phone. The 5G technology will soon be launched in India. It will improve our social, economical, space, health, defense, medical applications, etc. It will also benefit the online learning program, which is a virtual classroom that is more interactive and alive. The 5G technology supports the Digital India initiative of Indian government. It also supports our $5 trillion economy by 2024. Challenges for launching 5G technology. The switch from 4G to 5G requires high telecom infrastructure. Hence, the price of 5G will be significantly higher than 4G in the initial years. Overall, 5G technology is a boon for our Indian economy. Thank you. I suppose you are the youngest member of the parliament to the sex class. I must compliment the cutest MP. Thank you. I request Director Ma'am to present the memento to Shri Avinash Sazana ji. I request to present the memento to Dr. Kapil Sharma ji. Shri V.P. Khabra ji is being given the memento. Thank you, sir, for giving your valuable time. Honorable Speaker, for giving me the opportunity to express my views on the topic Lokpal and Lokayuta. The Lokpal and the Lokayuta Act 2013 provided for the establishment of Lokpal for the Union and Lokayuta for the state. Before I tell you what is Lokpal and Lokayuta, you may know Ombudsman. It is another term for the Parliamentary Commissioner for Administration as referred by the British. The Lokpal is an anti-corruption authority of the Ombudsman which represents the public interest of the Republic of India. The Lokayuta is the Indian Parliamentary Ombudsman which executes power through and for each state government of India. The term Lokpal and Lokayuta were coined by Dr. L.M. Singhvi. Now, its benefits. The major advantages lies in the legislation proposed. The clauses are aimed at tackling a major socio-political problem, which is corruption. Unlike the traditional system, the Lokpal gives its decision-making power to highly qualified individuals who are neither bureaucrats nor politicians. This bill has been in the pipeline for almost 5 decades, which conclude that people across generations have faith in it. Moreover, people will not get lost in the size of the Indian judiciary system and can rely on a single entity for their justice. Lokpal will have an inquiry wing and prosecution wing such as CBI. Primary inquiry reports will be done within 60 days and the primary investigation normally takes up to 90 days. The trials will be held in a special court and must be completed within 1 year. Extensions can be made, but the total time period cannot exceed 2 years. Thank you. Honorable Speaker, thank you for giving me the opportunity to speak on my topic, youth aspiration. I am Tejasvi Surya from BJP party, representing Bangalore South constituency. I will talk about the aspirations of the youth.
According to the recent survey, 55% of the young people have said that they would prefer a government job rather than a private job, and 24% of the young people have said that they would prefer to start up their own businesses. This is because of the initiatives of our government which are supporting them to start their new businesses like Skill India movement and Startup India, Digital India, to make India a knowledge economy and digital economy. There is a high participation rate of women in education. 42% of female are educated and 39% of male, thanks to the Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan launched by our government. If we compare our age structure to our neighboring countries and developed countries, the India is much more further away in the terms of young population. India has about 63% of young population. If you compare to the other countries like Japan only has 9.47 of the young population. And at last, I want to say that if our government continue to pursue the policies as we are doing, I am 100% sure that the youth will take us to the high flight of development. निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे। आजादी की बात से पहली बार हो रहा है, आटे पे चाटा मार दिया, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, इतना महंगा हो गया है दूध, पहले ही महंगाई आसमान को छू रही है, शहर शहर महंगाई की मार, टैक्स पर टैक्स और हर चीज पर टैक्स, फिर भी रोड़े खराब। सरकार ने किसानों को जीएसटी में लाने का पूरा दायरा कर लिया है। किराएदारों को रेट के साथ देना होगा 18% टैक्स। महंगाई की मार झेल रही जनता, महंगाई की मार से जनता पहले ही बेहाल थी। पेट्रोल डीजल की गैस की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। ऐसे में जनता की महंगाई के जख्मों पर सरकार को राहत का मरहम लगाना चाहिए, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई ने जैसे सरकार के जैसे जनता के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया हो। जब जब पेट्रोल, खाने की चीजें, दूध, दही, लस्सी, पनीर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे जनता के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। लोग उम्मीद करते हैं कि महंगाई में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हमेशा उनकी उम्मीद हवा बनकर उड़ जाती है। क्या जीएसटी का असली मतलब गई सारी तनख्वाह। Real issue that affect every citizen, high inflation, continuous rise prices badly affected the common citizen. एक वक्त पर राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मुझे लगता है यहाँ पर जितने प्रस्तुत है उन्हें बात सुन लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में कहा था कि दूध, दही, लस्सी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप 2022 में खुद देख सकते हैं उनकी सरकार क्या कर रही है। National Curriculum Framework 2005, Health and Physical Education is a compulsory subject for classes 1st to 12. In this regard, NCERT has brought out materials for classes 6, 7 and 8 as teacher's guide, and for class 9 as textbooks on health and physical education. In addition, CBSE has released a program on health and physical education for classes 1st to 12. CBSE has made the health and physical education classes compulsory in all schools. जिसमें उद्योग या क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। इसके अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे इस क्षेत्र में कार्यकुशल व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर अधिक मिलेंगे। यह क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इस क्षेत्र में उत्पादक अपने तरीके से स्वतंत्र निर्णय ले सकेगा, जबकि सरकारी क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए किसी प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। इससे नई विदेशी तकनीक का आगमन होगा। निजीकरण से रोजगार के अवसर अधिक बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निवारण होगा। इससे सरकार को घाटे में चल रहे उद्योगों से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे 1 मिनट की मोहलत लेना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि निजीकरण ये पॉलिसी जिसके अनेक लाभ हैं, वो हमारी शासित पार्टी बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। Speaker, I am presenting my view on cricket should be the national game of India. IPL has started and along with it the people have changed their work schedules to watch the IPL matches. Indians are die-hard fans of cricket. Whenever there is a serious, they forget all their tasks just to watch cricket.
Does this mean that the cricket should be the national game of India? Change is the law of nature. If it is what the local citizens of India demands, then the change should be welcome. People feel much more connected with the cricket and find it more entertaining than hockey. If you look for overall craze of Indian citizens for any sport, then it is for cricket only. Cricketers are trained like gold in India. People often blame that government do not make any efforts to encourage other sports. But if the local people do not support, भारत एक बहुत ही विशाल देश है और इसकी लगभग 60 से 70% जनसंख्या अपनी आजीविका निर्वहन के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। पूर्वकाल में भारत में की जाने वाली खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता था, परंतु धीरे धीरे अन्न की मांग बढ़ने लगी और लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऑर्गेनिक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें गोबर की खाद, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक खेती से प्राप्त होने वाले उपज की मांग बहुत अधिक है, तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि आप ऑर्गेनिक खेती से प्राप्त हुए उपज का अधिक से अधिक प्रयोग करें। धन्यवाद। Respected speaker ma'am, I am Vardhan representing my views on cow slaughter ban. Regarding cow slaughter ban, I feel that as a Hindu, cow is a sacred animal. Cow is a symbol of life and she should be protected. Cow is a very kind-hearted animal and people say that cow gives more to the civilization than what she receives. The oldest faith, that is Rig Ved, has also mentioned cow as a holy animal. Cow is also associated with Aditi, the mother of all the gods. Lord Krishna is also associated with cow. In past, killing a cow was as equal to killing a Brahman and therefore was considered the biggest sin of all the times. The idea of ban of slaughter was also raised when the leaders working hard for framing our constitution. The liberals opposed the demands of the banning the beef as they believe that India will be a secular state and not a Hindu state. Banning beef will harm the sentiments of the minority who consume beef, as the minority has equal rights as the majority. But I would like to conclude in the end thinking cow as Gau Mata. Thank you. Aryabhat, named after the noted Indian astronomer, Aryabhat was first Indian satellite, which was launched on April 19, 1975 from Kapustin. Next, SLV-3. SLV-3 was India's first experimental satellite launch vehicle. It was capable of placing 40 kg class payload in low Earth orbit. PSLV. PSLV was launched in October 1994 and since then emerged as a reliable launch vehicle. It was with 39 consecutively successful missions till June 2017. Chandrayaan-1. Chandrayaan-1 was India's first moon mission. It was the first unnamed lunar probe under the Chandrayaan program and was launched in October 2008 by ISRO. Thank you. But even after more than 50 years, police is seen selectively efficient, unsympathetic, and underprivileged. It is further accused of politicization and criminalization. In this regard, one needs to note the basic framework for policing in India was made way back in 1861, with little changes thereafter, whereas the society has undergone dramatic changes, especially in the post-independent times. The public expectations from the police have been multiplied and newer forms of crime have been served. The policing system needs to be reformed in tune with the present-day scenario and upgraded to efficiently deal with the crime and criminals, uphold human rights and safeguard the legitimate interests one and all. Police being the state subject in 7th schedule Constitution of India, it is primarily the state government who have been implemented the various police reforms measures. कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा था जिसमें कश्मीर को
अलग स्पेशल स्टेटस मिला था उसे हमारी बीजेपी सरकार ने हटाकर क्या लाभ दिए गए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने 370 हटाकर कुछ गलत किया है। 370 हटाने के बाद पूरे देश में एक ही झंडा, एक ही तिरंगा लहराता है। पहले कश्मीरियों को कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्यों इसे कश्मीर की सरकार से भी छुपाया गया? वोट की करा भी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर तुम्हारा है, तुमने क्यों कोई जानकारी नहीं दी? है कोई जवाब तुम्हारे पास? से मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आज मैं विजय कुमार सिंह भाजपा की ओर से भारत के परमाणु नीति के विषय में अपने तर्क रखना चाहता हूँ। ये बात है वर्ष 1974 की, जब एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जय भाभा के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बूथा, जो राजस्थान स्थित पोखरण में हुआ। इसके पश्चात अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों ने भारत को रोकने की कोशिश करी और कहा, इट विल बिकम डेंजरस फॉर द वर्ल्ड इफ इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड इफ इंडिया कंडक्ट दिस देन इंडिया शुड हैव टू पे अ ग्रेट प्राइस। एंड नाउ आई रिमेंबर दोज ग्लोरियस वर्ड्स फ्रॉम आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एंड दोज वर्ड्स वर, everything is at stake, there is no option to stop now, we can break at this point but we can't bend now. And then India conducted its nuclear fusion test on May 1998 at Program. And thank you. On the topic sex education, yes, sex education. I know that many of us would become uncomfortable after hearing sex education, because there is a stereotype that something like sex or sex is bad. This stereotype comes because we are not taught of this issue. There can be many factors of this, like shame or social fear. In the foreign countries, sex education is taught to students from class 6. Sex education may be provided by parents or school programs or public health campaigns. Sex education includes all aspects of communication with other sex, decision making, relationship, etc. Due to sex education, one can save one's life and partner's from sexual transmitted diseases like AIDS. These STDs can be fatal and but at last I would want to say that sex education should be necessary and sex education should be provided by parents as well as students. Thank you. मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं चर्चा करना चाहूँगा राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। इस एक्ट का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। धारा 6 के तहत बच्चे को किसी भी पड़ोस के स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में ना जा सका हो, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान नहीं है, तो वह छात्र किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान होगा। निजी व विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी अध्यक्ष रूप में निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान रिक्त करना होगा। स्कूल में प्रवेश स्थिति निकल जाने के बाद भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिला से रोकने नहीं जाएगा। सरकार ने पूरा देश बेच दिया और अभी कुछ समय पहले उन्होंने बोला कि
उनकी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन लाई। अरे देश बेचना और प्राइवेटाइजेशन, क्या आपको फर्क समझ में नहीं आ रहा? जिसे आप देश बेचना कह रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन से वो प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की हो जाती है। मान्यवर इंडिविजुअल को ही प्राइवेट कहा जाता है। तो मान्यवर, तो ये प्रॉपर्टी सभी की है, ना कि एक की। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर केवल प्राइवेटाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट हुई है। प्राइवेटाइजेशन करना हमारी इकोनॉमी का एक मेन कंपोनेंट है, ये हमें करना ही होगा। अगर देश की डेवलपमेंट चाहिए, देश में विकास चाहिए, तो प्राइवेटाइजेशन लाना होगा। अब आप इसे देश बेचना कहते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं आई है। प्राइवेटाइजेशन से डेवलपमेंट आई है। आपने डेवलप किया था 1991 में, जब से प्राइवेटाइजेशन आई है। आप देश का एक बार हाल देखिए, देश में कितनी डेवलपमेंट हुई है। My views are not to increasing marriage age, as the government is considering raising the minimum age of marriage for young women from 18 to 21, ostensibly to delay the age of motherhood, improve nutritional levels among young mothers, and decrease maternal mortality rates. While this seems like a progressive step, but a deeper look shows us that such a move would not empower for women in India. It would actually do the opposite. The existing law governing child marriage (PCMA) is not very effective. The minimum age of marriage age of girls has been 18 years since 1978, despite the steady decline of child marriage rates in India. The country continues to have the highest absolute number of underage brides in the world, despite the मैं को बताना चाहता हूँ, हमारे सरकार ने हर क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, बजट जनित योजनाएं हैं। कैबिनेट भी कहा है कि कैबिनेट की रिपोर्ट में भी कहा है कि दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो देश में मुनाफे में है। चुनाव आने से सभी पार्टियां कहती थी कि कच्ची कॉलोनियों में काम कराएंगे, मगर कराते नहीं थे। जब हमारी पार्टी आई तो हमने 8,000 करोड़ रुपए इनका कच्ची कॉलोनियों में काम कराए। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी और हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की, जहां पर हर वर्ग के लोगों को मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। और हमने यही योजना बिजली के बिल हमने पंजाब में लागू कर दिया। और हमारी अगली योजना गुजरात के चुनाव में, जहां हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और 2024 में हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। थैंक यू। 1/3 of the seats should be reserved for women in parliament or legislative assemblies. This bill was first recognized on 9th March 2010 and it is pending till now. Many audits have shown that more than only 6% of the women are playing the role of leadership in parliament and legislative assembly. To improve this percent, we should apply the bill really fast as possible, because most of the women are requesting that this bill should be passed as possible so they can get their opportunity to participate in the rules of parliament and issues. Globally, India ranked 148 in the list of 193 countries, and based on the female member only make up 11 to 6% of the upper class or Rajya Sabha. India has done a powerful achievement as being the most healthy country. From foreign countries, people come to India especially to get their treatments done. During the COVID-19, India produced its own vaccines, namely Covishield and Covaxin, which has vaccinated up to 3 crore people. Now, my main topic of speaking is drug overdosage in teenagers. Due to peer pressure and work pressure, teenagers and adults and middle-aged persons go through an addiction of drug overdosage. This drug overdosage can lead to a harmful effect on our bodies, be it mental, physical, social, or
preventing any diseases. Thank you, Mansoorji. Now I request. Human rights with fundamental rights for all citizens, irrespective of caste, creed, color, religion, sex, or nationality. In contrary, India's rank in HRI Human Rights Index is 135th out of 146 countries. But this is the highest improving score as we have done in past 16 years. According to social thinkers, these rights are so important that Universal Declaration of Human Rights, these are called base structure of all laws and social stability. So each and every one of us should pledge to work for this collectively. Thank you. Differently, they do things different. So you are the best, that's why you all are here. So before just giving my recommendation and my suggestions regarding you people, first of all, I wish to say a big thank to Madam Asha Praudya for giving me this opportunity. Ma'am, truly speaking, today since morning, I relived my school days. Thank you so much. It was a great, a job for me today. I was not treating myself that I'm here any kind of, guest. I was a part of this parliamentary session, and it is a great opportunity for me as well to learn certain things. Thank you so much for your love and kind concern always. And sometimes you need to give respect to your youngers also. My younger brother, Pulkit, he is always there to give me honor, and I'm really thankful to entire BPS family. And I must congratulate Varun sir that you have done truly incredible job, and this is the right platform for the students to improve your confidence level. It is not the matter only that you are there, you were given some kind of topics and you were there to give your deliberations related to that. It was more important, and rather it is very important that you people have presented yourself in very well manner. I don't want to judge this thing that whether you have done good or bad or anything, because there is no question of bad comes here. But you all are very excellent, but you need to improve a little, because there is always a scope of improvement. And I've noticed lot many things, and I'll hand over these suggestions to Varun sir. He will, because I don't want to give these weak points in front of all, because this is my personal opinion, that you should encourage in public, and any point of negativity that is to be told in person. So I'll give you these sheets so you can tell students what things they need to improve. I'm only going to give the students, according to me, everyone is the best, but even though I found certain people who are extraordinary excellent. So I've given certain star, as I told you, to Mahua Malta ji. She was truly excellent, and she has spoken on 2 time zone, and the topic was also very good, and her deliberation, her confidence level, her content was truly excellent. Then Sanjay Rao ji. Amandeep, I personally know his name, Amandeep. Truly, whether you have done excellent job, and your confidence, you are not from the politician family, even though I am just looking at you that you are a future politician of the country, and people should like you. You are truly excellent. Ma'am, he wants to be a politician. He wants to be a politician. All the best, and God bless you, and we wish to have fair, transparent, good politician. Not politician, true, fair, and good politician. Then I like the deliberation of Anupriya Patel. She has given very good thing. Then Nirmala Sita Ramanan. And Ashwani Vaishnav. Shashi Tharoor ji was also very soft and excellent. So these are the certain things which I have noticed, and next time stand up. Those who are being appreciated, जिनके नाम ले रहे हैं मैम वो खड़े हो जाइए प्लीज.
Nilakshi, stand up. Yes, stand up, Peter. So huge round of applause for everyone. Those who have participated in the Student Parliament House, you all are truly incredible people. You know, you are the best people. You are different from others. That's why you are here in the house. So treat this as an opportunity in your life. Always follow the instructions of your teachers and treat your school as the best place. I truly mean this because I know the environment, I know everyone in Bhiwani who are running schools. Bhiwani Public School is the best school in Bhiwani. I am proud to say this. So you are under the best people hands, under the blessings of best people. So cherish those things. All the best. God bless you everyone. Narendra Sharma ji wish to say a few words. पहले सेशन में मैंने देखा था कि मैंने बताया जैसे सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी अच्छी बहस की, दोस्ती बंद कर दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने बड़ा अच्छा रिकवर किया। और नरेंद्र मोदी जी का जवाब जो उनके पीछे जो बैठी हुई इंडिया का नाम इनका, जिन्होंने थोड़ा उम्र का तड़का भी दिया, मेनका गांधी की जेठानी सोनिया गांधी का वर्ड यूज किया था, थोड़ा सा एक लाफ्टर भी आया। आज के सेशन में सबसे बड़ी बात क्या रही, जैसे हम भी जब लाइव देखते दिल्ली में लोकसभा चल रही हुई है, राज्यसभा चल रही हुई होती है, तो मोस्ट ऑफ द सांसद जो होते हैं सो रहे होते हैं, उनकी आंखें झपके लग रही होती है। यहाँ पे एक भी बंदा मैंने ऐसे नहीं देखा जिसकी आंखें झपकी हो या सुस्ती ले रहा हो या उबासी ले रहा हो, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जैसे कि मैम ने कहा संजय राउत, तो दोबारा जब मौका आया था संजय राउत बोल रहे थे, तो मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उनको बोलने तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन और मैडम की ऑब्जर्वेशन भी उनके लिए सेम थी। लेकिन संजय राउत जी, आपके साथ साथ जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे वो भी एक बार खड़े हुए, इन्होंने भी बड़ा बखूबी से बहस को अंजाम दिया और ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ बीपीएस के हॉल में नहीं लोकसभा में बैठे हुए हैं और वो रियल फीलिंग दे रहे थे तुम लोग। इसके अलावा पीछे जैसे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे एक बच्चा ही घर से था और एक घर से थे सर, वे दोनों बच्चे खड़े हुए, इन्होंने भी ऐसा लगा कि रियल में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं लगा कि हम कोई बीपीएस स्कूल के फंक्शन में या ये प्ले कर रहे हैं या रोल मिला कर रहे हैं। कई बच्चे इसके अलावा जैसे दिग्विजय सिंह थी, एक लड़की वो चली गई अभी, उसने भी महंगाई के ऊपर बड़ा अच्छे से बोला। हालांकि मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, इधर से भी थर्ड रो में पीछे लड़की बैठी हुई थी, चश्मा था लगा रखा था उसने, वो चली गई शायद, हाँ, उसने बड़ा अच्छा बोला। एक यहाँ पे छोटा सा आपके साथ में ये छोटा बच्चा बैठा है, ये हाँ आप हाइट के कम है जिसकी, अनुज, इसका भी हाँ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपसे आगे वाले थे, कौन से थे दोनों में से, हाँ, इनका भी कॉन्फिडेंस वाकई बहुत जबरदस्त रहा। अब मैं एक बच्चे के बारे में नहीं बता सकता, जैसे मैडम ने कहा शशि थरूर, वह हुई जो इतना कॉन्फिडेंस देख के मैं कह रहा हूँ कि ये बीपीएस के बच्चों में ही हो सकता है, अदरवाइज और किसी स्कूल में अब जब हम जाते हैं तो क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, और टोटल मिला के स्कूल में 10 या 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ये लीडरशिप क्वालिटी का आज आशा पहुंचा मैडम ने, पुलकित सर ने बीज डाल दिया है इन बच्चों में, और आने वाले टाइम में ये बच्चे न केवल आपके स्कूल का, भिवानी का, हरियाणा का, ये देश में ये बच्चे आने वाले समय में हमारे फ्यूचर है। ये तो एक बार जोरदार तालियां बजाए। और सबसे पहले तो मैं जिसके दिमाग में ये आइडिया आया, जैसे वो सर कह रहे थे आइडिया पुलकित सर का था, तो मैं पुलकित जी से एक ही बात कहूंगा कि भिवानी पब्लिक स्कूल जैसे कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाने के लिए भिवानी में फेमस है, तो इस चीज को इसी तरह आगे भी फ्यूचर में जारी रखे। और वो दिन दूर नहीं है कि जब भिवानी स्कूल का, भिवानी पब्लिक स्कूल का डंका पूरे भिवानी में ऐसे ही बजेगा। थैंक यू सो मच मैडम मुझे बुलाने के लिए, और इतनी देर बैठने के बाद भी बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच प्रोमिला
मैडम था जिन्होंने इतनी अच्छी से स्पीकर का रोल प्ले। बहुत ही अच्छे जो है बच्चों का ये जो पार्लियामेंट्री सेशन देखने को मिला, और जैसा कि शर्मा सर ने, मैडम ने जो ऑब्जर्वेशन थी वही ऑब्जर्वेशन हमारे लिए संजय राव, प्रकाश जावड़ेकर और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला शांतिरमन और पटनायक जी, ये 4 जने जो बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ बहुत अच्छा बोले, तो सबकी एक जैसी ही एक ही नज़रिया था सबको देखने का। और बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि मैडम ने यहाँ पर आप सबको राइट दिया पार्टिसिपेट करने का, और सब बच्चों ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट दिया। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ये पार्लियामेंट सेशन सिर्फ आपके स्कूल में ही नहीं, आगे जाके एक गवर्नमेंट ग्रांट देती है इस चीज़ के लिए, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। लास्ट ईयर हमारे पास 25,000 रुपये की ग्रांट आई थी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर उन दिनों कोविड के कारण हम उसको करवा नहीं पाए थे, तो वो हमने यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करवा दिया था। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम से भी कि इसको जारी रखें, और आगे इन बच्चों में इसी तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा, और जो है आगे कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए मैम का, जोगिंदर सर का, पुलकित का, आप सभी जो बीपीएस की फैमिली है पूरी का, आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Regarding these activities, you know, there are 2 types of activities in any institution: academic and non-academic or extracurricular. Academic activities are very good for your career, but co-curricular activities are very important for your personality development and holistic development, overall development. So the program organized by the team of Joginder Bhardwaj ji, Pulkit ji, it was an excellent work, excellent performance. Every student, not only 4 or 5, every student participated actively. Active participation is very important. आपका डेवलपमेंट होगा, एक बार अच्छा नहीं बोल पाओगे, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन आपकी डेवलपमेंट होगी इससे। सारा प्रोग्राम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, इसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। पुलकित जी से मेरी बात होती रहती है, वो जब भी मिलते हैं वो यही कहते हैं कि कोई नया करें एकेडमिक्स में। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, तो इनकी सोच जो है वो काफ़ी आगे की है, और मैं यही कहूँगा कि यू आर ऑल इन सेफ हैंड। जब 2 लोग सेफ हैंड में होने चाहिए, एक पेशेंट जो किसी डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा स्टूडेंट्स जो किसी टीचर के पास जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि आपका पूरी लाइफ की जो अचीवमेंट होनी है, आपने आगे क्या बनना है, वो ये स्कूल डिसाइड करता है। तो मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, भारद्वाज जी को, मैम पहुजा को, पुलकित जी को, स्टाफ मेंबर्स को, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, वॉलंटियर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक्स सर। स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स पार्लियामेंट सेशन 2022-23, जिस पार्लियामेंट में आज हम बैठे, एक नया सा आभास था, एक नई दिल में एक इच्छा सी हो रही थी कि बच्चे किस प्रकार की परफॉर्मेंस करेंगे। हमारे सामने ये प्रपोजल आया कि स्टूडेंट्स की एक संसद बनाई जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए क्लास में। ना प्रिंसिपल सर को भी अभी हम लोगों ने ये आपकी प्रैक्टिस नहीं देखी थी, जिस तरह भी मिस्टर वरुण ने आपको ये पोर्टफोलियो दिए, आपको तैयार करवाया, आप लोग अपने नोटिस पर तैयार हुए और इस पार्लियामेंट सेशन को यहाँ सेटअप करने में सारे एसएस टीचर्स का हाथ रहा। कंप्यूटर टीचर्स ने अपनी कंप्यूटर की सेटिंग से सारा कुछ करा। एक लुक थी उसी पार्लियामेंट की जो हम टीवी में देखा करते हैं,
जहाँ अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी की ठक 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 हुआ करती, वो वही धुनाई, वही सब कुछ धुन आज यहाँ सुनने को मिली। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो भी हमारे गेस्ट बीच में आए, कुछ स्कूल मैनेजमेंट के थे और कुछ बाहर से आए, सभी की यही एक छवि थी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया और उनके सजेशन भी हमारे पास आए। और अभी अभी आपके सामने मिस्टर छाबड़ा, मिस्टर कपिल जो स्कूल में आए और जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, मुझे दिल से खुशी है कि ये दोनों मेंबर भी किसी दिन भिवानी पब्लिक स्कूल के परिवार के थे। बात अलग होती है, शादी हो जाती है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। ये दोनों बच्चे मेरा घर छोड़कर गवर्नमेंट के जवाई हो गए, अब ये गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छी जगह सेट हुए हैं, लेकिन जो परिवार मेरे साथ है मैं उनके साथ भी बहुत खुश हूँ। मैं उनके सभी के लिए शुभकामनाएं चाहती हूँ कि स्कूल इस तरह के प्रोग्राम करता रहे। ये प्रोग्राम करने का मकसद केवल एक ये भी था कि भिवानी पब्लिक स्कूल में पहले साइंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट चल रहा था। पिछले साल हमने ह्यूमैनिटी ग्रुप को लिया और इस साल वो ग्रुप फाइनल एग्जामिनेशन देगा और उसकी एक झलक हमने अपनी मैनेजमेंट को, हमने अपने नियर डियर को दिखा दिया कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। पहले प्रयास में अगर बच्चा तैयारी करके इतना निखर कर आता है, जब प्रिंसिपल की, जब मेरी और जब सब्जेक्ट टीचर की डांट होगी, तो मुझे लगता है कि बच्चे इतना निखर कर आएंगे कि हमें डिस्टिंग्विशन करना बड़ा मुश्किल होगा कि हु इज़ द बेस्ट। क्योंकि मेरी ये इच्छा कभी नहीं रहती कि एक बच्चा हो। ये कलेक्टिवली 97 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा और मैं इसके लिए वरुण को बधाई देना चाहूँगी कि इसमें क्लास 5, क्लास 6 और कुछ बच्चे क्लास 7, कुछ बच्चे क्लास 8 से आए कि सर हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दरिया दिल इनका, इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको देता हूँ। इन्होंने उनको पढ़ाया नहीं, उनका नाम नहीं जानते, लेकिन उनकी आंखें ये बोल रही थी कि हम भी संसद की, उस सांसद का एक पार्ट बने, हम भी वहाँ बैठे। और उन बच्चों ने जैसा बोला बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि प्रयास बच्चों का था, गाइडलाइन टीचर ने दिखानी थी। मैं बार बार यही कहती हूँ कि बच्चे आज हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमें आपको गाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरी ये इच्छा रहती है कि कोई भी बच्चा, कभी टीचर डांटेगा भी, कभी टीचर प्यार भी करेगा, लेकिन आपको एक सीधा पथ दिखाने के लिए प्रिंसिपल भी सख्ती करेंगे, डिपार्टमेंटल हेड भी सख्ती करेंगे, कभी एक्टिविटी इंचार्ज मैडम मैतानी बीइंग अ सब्जेक्ट तो वो करेंगी, लेकिन कभी इस एक्टिविटी के हिसाब से वो भी गुस्सा करेंगे। हर टीचर जो भी बुराई कहीं भी देखेगा उस पार्ट पर गुस्सा करेगा, लेकिन स्टूडेंट ने उसकी तरफ नहीं जाना। हमने आपकी जितनी बुराइयां हैं उसको सबको खत्म करके पूरी तरह से आपको तैयार करके इस स्कूल से भेजना है कि जहाँ भी आप जाओ अपना एक औधा दिखा पाओ कि हम क्या थे, कैसे हम डिसिप्लिन में रहते हैं। मैं आज भी आप लोगों को देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी शोर शराबा नहीं था, और अगर कुछ होता तो फिर ये सांसद न बनती, फिर ये हमारा भिवानी पब्लिक स्कूल का एक्टिविटी हॉल कहलाता। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं, और इसमें सब टीचर्स ने जो साथ दिया, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने डेकोरेशन में, किसी ने सेटिंग में, किसी ने किसने, सबने मिलकर जो काम किया है, और सारे स्टाफ से, और जिसका रिंग लीडर है प्रिंसिपल, मैं मिस्टर जोगेंद्र को भी यही कहना चाहूँगी। कई बार मैं उनका फर्स्ट नेम बोल जाती हूँ क्योंकि आप सभी मेरे से उम्र में छोटे हो। कोई भी काम हो हम सब मिलकर इस काम को ऐसा करेंगे ताकि पूरी भिवानी में ये रहे कि परिवार देखा तो भिवानी पब्लिक स्कूल का काम बच्चे करते हैं,
बच्चे स्कूल का नाम ऊंचा करते हैं, फ्लैग आता है टीचर्स के हाथ में। तो मैं फिर आप सभी को बधाई दूंगी कि उस फ्लैग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इन बच्चों के लिए हम एक ऐसा राह खड़ा करेंगे ताकि जब भी ये बच्चे +2 करने के बाद यहाँ से जाएं और ये सोचें कि हमें कुछ मिला, हमने कुछ किया, स्कूल ने क्या किया। स्कूल ने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि कोई भी डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है उसमें नफ़ा हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर रही हूँ। अल्फा क्लासेस के लिए मैंने आप लोगों के लिए वो भी करा। जितने भी बच्चे जुड़े मैंने उनको बस बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करी है और वो बच्चे अब अपनी मेहनत से स्कूल को क्या गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट से मेरा मतलब है अपना रिजल्ट जो हमें दोगे, हमारे लिए सबसे बड़ा वो गिफ्ट है, क्योंकि 2 गिफ्ट ऑलरेडी हाथों में आ चुके हैं। तो IAS ऑफिसर बन चुके हैं, क्लैट में बच्चे जा चुके हैं, JEE मीन्स में बच्चे जा चुके हैं, बच्चे हर फील्ड में जा चुके हैं। और मैं यही आप सभी से उम्मीद करती हूँ जो मोदी सीट पर बैठा है, मैं आपको आज अपने मुंह से ये बात कह रही हूँ कि 6 साल के बाद अगर ये बच्चा IAS ना बना तो मेरा नाम बदल दे। इस बच्चे के हाव भाव, इसकी सहनशीलता, इसके बोलने का ढंग बहुत कुछ दर्शा रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान आप सबकी लाइफ में इतनी खुशी लाए कि अभी आप स्टूडेंट हो, 12th के बाद आपको एक राह पकड़नी होगी, आपका एक जीवन कैसे शुरू करना है वो बनना होगा। और उसके लिए शुभकामनाएं भिवानी पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से आप सभी को है। और स्पेशल बधाई मिस्टर कपिल और मिस्टर छाबड़ा जो मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, आज भी मेरे हैं, चाहे वो किसी भी बड़े ऊंचे ओहदे पे, और भगवान उसको और भी ऊंचा ओहदा दे, लेकिन वो भिवानी पब्लिक स्कूल के साथ आज भी जुड़े हैं। एक छोटा सा काम मैं फ़ोन पर कहती हूँ कि मिस्टर कपिल ये करना है, मिस्टर छाबड़ा ये करना है, मैं इनको कैसे उस चीज़ का ऋण इनका कैसे चुकाऊंगी कि मेरी छोटी सी बात के ऊपर वो यस करके और वो मेरा काम प्रिंसिपल रिपोर्ट करते हैं कि ये काम हो गया, उन्होंने कर दिया। सो मैनी थैंक्स फॉर दैट स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर, और सभी पुनः आप सबको बधाई देती हूँ। स्पेशल बधाई जा रही है। और आज जो सबसे बड़ा काम करा मेरे वॉलेंटियर्स ने, और जो ये टीम आई है जिन्होंने आपकी सारी क्लिपिंग ली है, दौड़ दौड़ के काम करना, और इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर विवेक को। वॉलेंटियर्स को बधाई दूंगी, बड़ी पेशेंस के साथ काम करा। अब मैं थोड़ा सा आपसे हटकर एक बात कर रही हूँ। मैंने आप सबकी रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करा था, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने रिफ्रेशमेंट ना ली। अगर नहीं ली तो मुझे बताओ, मुझे इसका बहुत दुख होगा अगर आप बिना कुछ खाए यहाँ से जाओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।